मददगार अब साथ ही नहीं बल्कि जिनके लिए वो आया है अब वो उनके अंदर रहेगा। आमीन। अब क्या करेगा? उनके अंदर रहेगा, क्योंकि बाहर के काम, साथ वाले तो काम हो गए सारे, लेकिन अंदर वाले काम अभी होने कुछ बाकी है। अब कहाँ जरूरत है खुदा की? अंदर। कहाँ जरूरत है बेटियों बहनों? अंदर है। और पाखरू कहाँ आया है भाई? सिर्फ साथ नहीं, सिर्फ जमात पे नहीं ठहरता, उसकी मौजूदगी, उसकी हजूरी, प्रेजेंस जमात पे सिर्फ नहीं होती, बल्कि वो हमारे अंदर तक जाता है। आमीन। और सिर्फ जाता और आता नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर सकूनत करता है। बराहे करम हमारे लिए दुआ करें कि खुदावंद हमें हमारी गिरजा घर दे, ताकि हजारों लोग वहां बैठकर खुदावंद का कलाम सुन सकें। हम इस वक्त एक छोटी जगह पर हैं और मुस्तकबिल में एक बड़ी जगह खरीदना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी मदद के लिए बराहे करम +9231987948993 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 92 319 8,794,893. मौत बेरखिलाफ मौजूद है, वो बेशक खोले। बुजुर्ग यूहन्ना रसूल के वसीले लिखा गया अंजीली बयान। 15 वर्ष से मैं शुरू करूंगा। 14 चैप्टर गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है, दिल लगा के, जी लगा के, बेटी ही ना सुनना है। ठीक है? कैसे सुनना है? दिल लगा के, जी लगा के, ध्यान से कलाम को सुनना है। आमीन। आमीन। अच्छा, ऐसे करें। हाँ, कौन कौन ये करने के लिए तैयार है? मैं तो पक्या कर ला, तुझे बात चुपते हिल ना जाओ। चलो ठीक है। लिखा है जी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, यीशु अपने शागिर्दों से मुखातिब है। और अगर हम शुरू में पढ़े तो वो गमज़दा थे, तो यीशु मसीह उन्हें क्या कर रहा है? दलेर कर रहा है और उन्हें तसल्ली दे रहा है, मजबूत कर रहा है कि वो उसके जाने से, जुदा होने से गमज़दा ना हो। तो जैसे आपने फिर सीखा भी पिछले यीशु के जीव आसमान पर उठाए जाने में कि जाना क्या है, बहुत ज़रूरी है, फायदामंद है। आमीन। तो लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर कोई दावा आप में से यहाँ करता है कि मैं जी यीशु से मोहब्बत रखती हूँ और वो फर्मा बरदार नहीं है, तो बाइबल में लिखा है वो झूठा है। और यीशु ने इजहार किया कि तुम मुझे ऐ खुदावंद क्यों कहते हो, जबकि तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। तो याद रखिएगा, हकीकी मोहब्बत का सबूत जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी फरमाबरदारी करना है। आमीन। आगे लिखा है जी, और मैं बाप से
درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ تو خداوند نے کہا شاگردوں سے کہ میں باپ سے پھر کیا کروں گا؟ درخواست کروں گا، روح القدس کی درخواست کروں گا، تو وہ کیا کرے گا؟ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ کیا ہوگا اس مددگار سے؟ کہ وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ وہ پریشان کیوں تھے؟ جدا ہونے سے۔ پریشان کیوں تھے جی؟ جدا ہونے سے یسوع کے۔ تو یسوع مسیح ان کے لیے بہترین بندوبست کر رہا۔ آمین۔ کیا کر رہا ہے؟ بہترین بندوبست کر رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ جو مددگار آئے گا وہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ اب تک۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے۔ روح القدس ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، روح القدس ہم میں رہنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئے زوردار ایک دفعہ اس بات کو سمجھیے گا۔ اور کیونکہ وہ ساتھ سے ہی پریشان تھے تو کیسا مضبوط بندوبست ہوا ہے۔ آمین۔ یسوع نے کہا جی جو مددگار آئے گا وہ اب تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی بہترین بندوبست۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کیا کرتا ہے؟ بہترین بندوبست کرتا ہے۔ جو نہیں، یسوع کیا کرتا ہے؟ بہترین بندوبست کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم بھروسہ کریں اس پر، وہ ہماری زندگیوں کی فکر کرتا اور بہترین بندوبست کرتا ہے۔ آمین۔ آگے لکھا ہے جی، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اذان ہو رہی ہے تو مائک کی جی؟ اچھا چلیں۔ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ تھوڑا ساتھ رہیے گا، مجھے یہاں بالکل دھندلا نظر آ رہا ہے تو وہ لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ کیا کمال ہے جی! غور سے سنو میری بیٹیوں، بہنوں، پینٹیکوس پر بھروسہ رکھنے والوں، جشن روح القدس منانے والوں، غور سے اس کلام کو سنو۔ ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اور آگے کیا ہے جی؟ اور تمہارے اندر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ آئے زوردار ایک دفعہ دیکھیں، بہترین بندوبست۔ اب بات صرف ساتھ کی نہیں ہے، بات ساتھ کی نہیں ہے، بہترین بندوبست یہ ہے کہ جو آیا ہے وہ ساتھ ہی نہیں، ہمارے اندر ہوگا۔
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बेहतरीन बंदोबस्त, कहिए सारे, बेहतरीन बंदोबस्त। कहिए यीशु बेहतरीन बंदोबस्त करता है। यीशु बेहतरीन बंदोबस्त करता है। हालेलुया। हालेलुया। आए अब यीशु के लिए जोरदार बेहतरीन बंदोबस्त। साथ ही नहीं तुम्हारे अंदर होगा। गौर से सुनिएगा, साथ कौन है? क्या लिखा है? दुनिया पाक रूह को हासिल नहीं कर सकती है। और क्यों नहीं कर सकती, इसकी वजह भी बताई गई है कि वो उसे ना जानती है ना देखती। इस सबब से वो पाक रूह को हासिल नहीं कर सकती। लेकिन चर्च के लिए क्या बात है यीशु की? तुम उसे जानते हो। कैसे जानते हो? तुम उसे जानते हो, हमारे साथ रहता है, वो तुम्हारे साथ रहता है। हमारे अंदर है। साथ उनके कौन था? गौर से कलाम सुनना है जी, अखा खोल के अंदर वालियां। साथ कौन था उनके? साथ खुदा का बेटा यीशु था। आमीन। आमीन। इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा, तस्लीस की, ट्रिनिटी की ऐसी इकाई है कि बेटा है तो पाकरू भी है, आमीन। बेटा है तो बाप भी है। आमीन। आमीन। तो इसलिए कोई एक अकनूम, तस्लीस का एक हिस्सा, एक अकनूम मौजूद हो कहीं पर, तो बाकी भी सब क्या है, उनकी आपस में इकाई ऐसी है कि बाकी भी क्या है, सब वहां पे मौजूद है। आमीन। आमीन। तो साथ कौन है उनके जी? यीशु। यीशु है। इसका मतलब क्या है? पाकरू और यीशु, ये सारे एक ही बात है, खुदाए सालूस। आमीन। आमीन। अकनूमियत में वो अलग अलग है, लेकिन जात में क्या है, वो एक है। आमीन। आमीन। ये याद रखिएगा। सो रूहुल कुद्स नजात से हटकर, जो नजात खुदा के बेटे में हमें मिली है या लोग हासिल कर रहे हैं, उससे हटकर अलग से कोई काम नहीं करता, बल्कि उसका आना, रहना और काम करना, ये उसी नजात का हिस्सा है जो नजात खुदा के बेटे यीशु के पेश की मतलब से मिली है। आमीन। 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 ये याद रखिएगा। साथ कौन है? यीशु खुदा का बेटा। खुदा का बेटा, उनका खुदावत। और यीशु ने कहा, तुम उसे देखते हो। कैसे देखते हो? बेटे को देखते हो तो पाकरू को भी देखते हो। आमीन। जो बेटे को देखता है वो पाकरू को देखता है, जो बेटे को जानता है वो बाप को भी जानता है। जोरदार खुदावंत के लिए ये याद रखिएगा, ये अलग अलग बातें नहीं है। सो तुम उसे देखते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। आमीन। यीशु का साथ बाप का साथ है, यीशु का साथ रूहुल कुद्स का साथ है। अगर आप 14 ही चैप्टर को पढ़े, गौर से सुनिए, मेरी तरफ देखिए। अगर आप 14 चैप्टर को ही पढ़े तो फिलिप्पस ने कहा कि बाप को हमें दिखा, यही क्या है, हमारे लिए काफी है। क्या कहा जी? बाप को हमें दिखा, बाप को हमें दिखा, ये हमारे लिए क्या है, काफी है। काफी है। तो क्या लिखा है, आए पढ़ के इसको देखिए कि क्या लिखा है। यीशु ने क्या कहा? अगर आप 9वीं वर्ष का दूसरा हिस्सा पढ़े तो, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। उसने बाप को देखा। तो क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा?
क्या तू यकीन नहीं करता मैं बाप कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में और बाप मुझ में है। हालेलुया। आए जोरदार खुदावंद के लिए तस्लीस खुदाई सलूट। इनकी अकाई ऐसी है, ये जुदा नहीं होते। खैर, उन्होंने खुदा के बेटे में बाप के साथ होने का भी और पाकरू के साथ होने का भी तजर्बा कर लिया। आमीन। आमीन बेटे के साथ वक्त गुजारना, बाप के साथ वक्त गुजारना है, पाकरू के साथ वक्त गुजारना है। आमीन। आमीन और ये तजर्बा उन्होंने किया और यही यीशु बात कर रहे हैं। दुनिया क्यों नहीं जानती, ना उसे देखती है, इसकी भी यही वजह है। कौन था उनके दरमियान? खुदा का बेटा यीशु जो उनके दरमियान था, लेकिन उन्होंने उसे ना पहचाना, ना जाना और रद्द किया और जलाल के खुदा को मसलूब किया। इस सबब से याद रखिएगा, बेटे को ना जानना पाकरू को ना जानना है। बेटे को रद्द करना पाकरू को रद्द करना होता है। आमीन। तो यीशु ने कहा दुनिया क्यों हासिल नहीं कर सकती, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ना उसे जानती है ना देखती। तो यीशु तो था, लेकिन वो उसको ना पहचानते थे, ना जानते थे। इस सबब से वो पाकरू को भी हासिल नहीं कर सकती। आमीन। लेकिन तुम जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। रहता कैसे है? साथ, यानी मौजूदा हालत। और आगे क्या है? फ्यूचर क्या है? तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। आमीन यीशु मसीह की सूरत में खुदा साथ है। आमीन एक कंवारी हमला हो साथ रहिए, एक कंवारी हमला होगी हामला होगी और बेटा चलेगी और उसका नाम क्या होगा? इमानुएल उसका नाम इमैनुएल होगा और जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कलमा मुजस्सम हुआ, कलमे ने जिस्म लिया और कलमा हमारे दरमियान रहा, हमारे साथ रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। हालेलुया। ग्लोरी। याद रखिएगा। अब मैं एक बहुत खास बात आपको सिखाना चाहता हूं। और देखिए, साथ आया तो साथ भी खूब निभाया। बेटे की सूरत में बाप और पाकरू साथ है और बेटे का साथ खुदा का साथ। आमीन। आमीन और फिर खूब साथ निभाया और ऐसा साथ निभाया कि हमारे तमाम बोझ को, हमारे तमाम गुनाहों को, हमारे तमाम इल्जामों को, हमारी तमाम मेहनतों को, हमारी तमाम मुशक्कतों को उठाकर सलीब पर चढ़ गया। ऐसा साथ निभाया है। हालेलुया। हालेलुया और सारे बोझ को सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा डाला। आमीन। मददगार अब साथ ही नहीं बल्कि जिनके लिए वो आया है अब वो उनके अंदर रहेगा। आमीन। अब क्या करेगा? उनके अंदर रहेगा। क्योंकि बाहर के काम, साथ वाले तो काम हो गए सारे, लेकिन अंदर वाले काम अभी होने कुछ बाकी है। अब कहाँ जरूरत है खुदा की? अंदर। कहाँ जरूरत है बेटियों बहनों? अंदर है। और पाखरू कहाँ आया है? भाई सिर्फ साथ नहीं, सिर्फ जमात पे नहीं ठहरता, उसकी मौजूदगी, उसकी हजूरी, प्रेजेंस जमात पे सिर्फ नहीं होती,
बल्कि वो हमारे अंदर तक जाता है। आमीन। और सिर्फ जाता और आता नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर सकूनत करता है। हालेलुया। आए जोरदार ग्लोरी। पाकरू आपके अंदर सकूनत करता है। हम आगे देखेंगे कि क्यों सकूनत करता है, लेकिन है क्या खूबसूरत है खुदा का साथ। बेटे की सूरत में वो साथ आया, साथ रहा, लेकिन पाक रूह की सूरत में वो हमारे अंदर तक आ गया। आमीन। आए जोरदार एक दफा फिर हालेलुया ग्लोरी। एक वर्ष लीजिएगा जल्दी से इफ्सियों, और गौर से पैगाम को सुनना है। मैंने जैसे कहा कि आज का पैगाम जो है वो आपको छू जाएगा। आमीन। आमीन। आपको बदल डालेगा। आमीन। तो इसके लिए आपको भी कुछ करना है, और वो है बगौर सुनना। इफ्सियों निकालिए जरा जल्दी से, 4 चैप्टर। भाइयों, बाइबल पढ़ने वाले बेटियों, गौर से सुनो खुदा के काम को और कलाम को। 6 वर्ष, 4 चैप्टर। और सबका खुदा और बाप एक ही है। सबका खुदा और बाप एक ही है। और जो एक है, आए उस पर गौर करें वो कैसे हमारे साथ रहता है। जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। आए जोरदार ग्लोरी ग्लोरी। खुदा का साथ, खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी आपके लिए क्या खूबसूरत। ऊपर कैसे है, ये नहीं कि अब वो ऊपर साथ और अंदर नहीं है, लेकिन हम अलग अलग इनको देख रहे हैं, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं पाकरू के तलक से। आमीन। ऊपर कैसे है, गौर से सुनो मेरी बेटियों बहनों। मुजस्सम से पहले वो ऊपर है और ऊपर से रहकर रहनुमाई करता है। गौर से सुनिए, बात को समझिएगा, खुदा के काम को समझिए, गौर से समझिए और अपनी अहमियत को जानिए। खुदा आपके लिए कितने अजीम और बड़े बड़े मंसूबे रखता है। आमीन। मुजस्सम से पहले खुदा हमारे ऊपर है और ऊपर से हमें डायरेक्शन देता है, हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मुजस्सम होने के सबब से वो क्या है, साथ दरमियान, वो हमारे दरमियान रहा। कलमा खुदा का बेटा कहाँ रहा, साथ दरमियान, और रहकर दरमियान खूब काम किया, हमारे लिए सलीब उठाई, हमारे लिए खुद को कम कर दिया, दुख उठाए, हमारे गुनाहों का फिदिया दिया, सलीब पर अपना बेशकीमती लहू बहाकर उसने अपनी जान दी, मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अब खुदा एक ही है, गौर से सुनिएगा, खुदाए सलूस। खुदा कितने हैं, एक। भाई हम एक ही खुदा को मानते हैं। आमीन। आमीन। 3 अलग अलग खुदाओं को हम नहीं मानते, एक ही खुदा जो खुदाए सलूस है, जो अपनी जात में कसरत रखता है। आमीन। आमीन। याद रखिए इस बात को बेटियों बहनों, आपका यही अकीदा है। आमीन। आमीन। अब एक ही खुदा है, गौर से सुनो, आप पाकरू को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझना है आपने, तो आपने खुदा को समझना।
एक ही खुदा है और वो सबके ऊपर है, एक ही खुदा है और वो सबके दरमियान है, और एक ही खुदा है जो सबके अंदर है। अब खुदा एक है, ऊपर कैसे है? तजस्सुम से पहले, दरमियान कैसे है? तजस्सुम के बाद, और अंदर कैसे है? पाक रूह के नज़ूल के सबब से। आमीन। आए जोरदार खुदा के लिए, जोरदार ग्लोरी। अब अंदर है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही खुदा है जो अब कहाँ है? अब कहाँ है बेटियों? हमारे अंदर। पीछे वालों बहनों, अब खुदा कहाँ है? आपके अंदर। कहाँ? अंदर है। अंदर क्यों आया है? आए अब थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करते हैं। अंदर क्यों आया है? जैसे मैंने आपको बताया कि नजात का काम जो है ये बड़ी नजात है बेटे में, और नजात का काम बेटे में तो मुकम्मल है, लेकिन हम में उसका मुकम्मल होना अभी बाकी है। आमीन। आमीन। तो इसलिए खुदा को अब कहाँ आना पड़ा? अंदर। साथ इसलिए आना पड़ा ताकि वो हमारे गुनाहों को उठा सके। गौर से सुनो बेटियों, खुदा को पहचानो। पाखरू कोई कुव्वत नहीं है महज, कोई अलग से कोई चीज नहीं है, एक ही खुदा की बात हो रही। वो ऊपर भी है, वो दरमियान में भी है, और हमारे अंदर भी है। अंदर भी है। आमीन। आमीन। मेरा खुदा एक ही खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। जो मुझे नजात देता और मुझे संभालता है। हालेलुया। आए जोरदार इस एक खुदा के लिए ग्लोरी। एक खुदा के लिए जोरदार खुदाए सलूस तारीफ। अब सुनिए गौर से, साथ इसलिए आया ताकि हमारी मुशक्क़तें उठाए, लेकिन अब अंदर इसलिए आया है ताकि हमारे अंदर की खराबियों को दूर कर सके। आमीन। अंदर किस लिए आया है? अंदर हमारी खराबियों को दूर। हमारे अंदर की खराबियों को। मैं एक दो हवाले के साथ इसको आप पढ़ लीजिएगा, वक्त नहीं है वैसे खोल कर इसकी तिलावत की जाए, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिएगा। यीशु ने मत्ती की इंजील शायद 15 चैप्टर या 15 है मेरा ख्याल, इसमें कहा शागिर्दों पर इल्जाम लगा कि तेरे शागिर्द बगैर हाथ धोए खाना खा लेते हैं, और ये अच्छा नहीं है, ये नापाकी की हालत है। अब यीशु ने क्या कहा? गौर से सुनिए सारे। यीशु ने कहा बगैर हाथ धोए खाना खा लेना आदमी को नापाक नहीं करता, बल्कि कैसे? दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं जो आदमी को क्या करते हैं? नापाक करते हैं। और पैदाइश की किताब के 6 चैप्टर में खुदा ने कहा इंसान के लड़कपन ही से ख्याल क्या है? सदा बुरे हैं। अंदर बिगाड़ आ गया है, अंदर खराबी आ गई है, कफारा हो चुका है। बेटे ने बेशकीमत लहू से हमारे गुनाहों को धो डाला है। बेटे में नजात, मुकम्मल नजात है, पूरी नजात है, लेकिन हमारी जिंदगी में उस नजात का कोई और नजात नहीं, वही नजात जो बेटे में मिली है, उस नजात का हमारी जिंदगी में पूरा होना बहुत जरूरी है। इसलिए अब क्या है? अब खुदा को साथ नहीं बल्कि हमारे अंदर आने की जरूरत है। इसलिए वो साथ नहीं, साथ भी है वो, लेकिन अब वो कहाँ आया है? हमारे अंदर आया है। कलाम सुनिए खुशी से, थकावट के साथ नहीं सुनना। हमें थोड़ी देर और सुनिए गौर से क्या लिखा। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा
प्यासा हो तो मेरे पास आकर अगर कोई प्यासा प्यासा हो मेरे पास आकर पिए। तो मेरे पास आकर पिए। खास दिन और खास पैगाम। आमीन। आमीन। भीड़ खड़ी है, खास बात है, इसलिए यीशु ने धीमी आवाज में नहीं कही, बल्कि क्या कहा? डीकन साहब ऊंची आवाज में कहा, क्या कहा? अगर कोई प्यासा ऊंची आवाज में क्यों कहा? सारे समझ आए। हाँ? बात खास है और कोई अनजान ना रह जाए, सबको समझ आ जाए। तो खड़े होकर क्या कहा? खास बात, पाकरू की बात जो होती है वो खास होती है। हालेलुया। हालेलुया। खास बात है, और खास बात, खास पैगाम क्या है? अगर कोई प्यासा हो मेरे पास तो मेरे पास आकर पिए। पाकरू कैसे मिलता है? किसी को दो लफ्ज मुंह में डालने से पाकरू नहीं मिलता। शमाउन को पतरस जो शमाउन है उसके पास पैसों की ऑफर लेकर आ गया, तो उसने क्या कहा? ये पैसे रख ले, डील कर ले, और मुझे भी ये इख्तियार दे कि मैं भी जिस पर हाथ रखूं वो पाकरू हासिल करे। तो शमाउन ने क्या कहा? पतरस ने क्या कहा? तेरे पैसे तेरे साथ क्या हो? गर्क हो। तू खुदा की बख्शिश को पैसों से खरीदना चाहता है। आमीन। आमीन। ये रूहुल कुद्स पाकरू क्या है? खुदा की बख्शिश खुदा याद रखिएगा, हमें पैसों से नहीं मिलता, चाहे वो बेटे की सूरत में आए, चाहे वो पाकरू की सूरत में आए, ये उसकी बख्शिश है। आमीन। आए जोरदार, पैसों से नहीं मिलता, खुदा पैसों से नहीं मिलता, याद रखिएगा। इसलिए दो लफ्ज मुंह में डालने से किसी को पाकरू नहीं मिलता। ये बोलो जी, जुबान फिसलेगी, फिर बाद में कहेंगे हाँ इन पाकरू दा बपतिस्मा हो गया जी। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इनसे बचना। ये जगह जगह भेड़िए हैं, ये इनसे बचना मेरी बेटियों। इन्होंने बड़े घरों को तबाह किया है, बहुत से लोगों को गुमराह किया है, इनसे बचना जरूर। सुनिए रूहुल कुद्स कैसे मिलता है। यीशु ने क्या कहा? अगर कोई प्यासा हो, पाकरू की प्यास रखता हो, पाकरू की जरूरत को महसूस करता हो, पाकरू को हासिल करने का या अपनी जिंदगी में लेने का ख्वाहिशमंद हो, तो वो क्या करे? वो मेरे पास आकर पिए। पाकरू सिर्फ खुदा के बेटे यीशु ही से मिलता है, हमें किसी और तरह से, किसी और वजह से नहीं मिलता है। लेकिन खैर, जब रूहुल कुद्स मिल जाता है या आ जाता है तो क्या होता है? यीशु ने आगे क्या कहा? जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है। पूरी गल पढ़ो, अदीना पढ़ो। सिर्फ पानी की नहीं गल हो रही, सिर्फ नदियां पानी के नहीं, जिंदगी के बात किसकी हो रही है? जिंदगी की हो रही है। कहां से निकलेगी? अब भाई जहां रहेगा वहां से ही निकलेगी। रहता कहाँ है? अंदर। बोलो तो सही। अंदर। किन के अंदर रहता है? हमारे। आपके अंदर रहता है। तो जिंदगी की नदियां कहां से बहेंगी? आपके अंदर से बहेगी। आमीन। जिंदगी का रूह आप में है, आपके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाएगी। जहां से खराबियां ही निकलती आई है, अब खराबियां नहीं, खराबियां उसके आने से खत्म हो जाती है। आमीन। अब फिर क्या निकलता है? जिंदगी की नदी, पानी की नदी। क्योंकि जिंदगी का रूह जब हमारे अंदर है तो निकलेगा भी
वही, हालेलुया, हालेलुया। निकलेगी भी जिंदगी। अब मौत वाली बातें नहीं होगी, अब ऐसी आदतें नहीं होगी, अब ऐसे फेल नहीं होंगे, अब ऐसी बुराइयां नहीं होगी, अब ऐसे तस्वुरात नहीं होंगे, अब ऐसे ख्यालात नहीं होंगे जिनका नतीजा मौत हो, बल्कि ऐसा फल निकलेगा, ऐसी आदतें निकलेगी, ऐसी गुफ्तगू निकलेगी, ऐसा मिजाज निकलेगा जिसका नतीजा हमेशा की जिंदगी होगा। आमीन। जोरदार एक दफा याद रखिए। अब मैं क्लोज करता हूं, सुनिए। हम में से शायद बहुत से दावेदार हैं, गौर से सुनिए बात। ये सच है कि पेंटिकोस्ट चर्च, गौर से सुनिए, पेंटिकोस्ट चर्च रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का निशान गैर जुबाने जो है इनमें एक्सेप्ट करता और मानता है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, ये भी सच्चाई है कि हो सकता है कि हम गैर जुबान तो बोल रहे हैं, लेकिन इसी सबब से हम खुद में रूहुल कुद्स की मौजूदगी को हमेशा इसी निशान से देखते रहे। लेकिन ये दुरुस्त नहीं। मेरी बात सुनिए गौर से, बहुत अहम बात है। दुरुस्त क्या है? बिब्लिकली तौर पर दुरुस्त सबूत क्या है? यीशु ने क्या कहा? अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल। जब जिंदगी का रूह आप में है तो फिर कैसे कोई कड़वी जड़ निकल सकती है आपसे? आमीन। सिर्फ बहस ये सच है, गैर जुबान बोलना बपतिस्मे का, पाकरू के बपतिस्मे का निशान है, लेकिन उसके आपकी जिंदगी में मुसलसल होने का सबूत नहीं। बल्कि मुसलसल सबूत क्या है? ऐसा शख्स जिसमें खुदा का पाकरू रहता है, जो जिंदगी का रूह अपने अंदर रखता है, याद रखिएगा उसमें से जिंदगी की नदी नहीं, नदियां जारी होती है। आमीन। वो जिधर जाता है माहौल तब्दील कर देता है, वो जिनकी संगत में जाता है उनको बदल कर रख देता है, वो तारीकी में रोशनी का काम करता है, वो भटके हुए को राह रास्त पर ले आता है, वो दूसरों के लिए बाइस से बरकत बन जाता है। आमीन। जोरदार खुदावंद के याद रखिएगा। तो इसलिए ये नहीं कि यहाँ गैर जुबान में दुआ है, कार जाके बंदे ना लड़ाई है। ये यहाँ गैर जुबान में दुआ है, उसे बाहर जाके झूठ ने। तो ये किसने आपको बता दिया कि पाकरू आप में है? आए यकूब का खत नीचे जल्दी से, मैं ये लास्ट है मेरा, आए जल्दी से, ये बहुत अहम हवाला है, इसके साथ आप जाइए ताकि आप बेहतर हो जाए। यकूब का खत 4 चैप्टर, ठीक है साहब, गौर ना जरा, दिल थाम के। 4 चैप्टर 5 वर्ष, क्या लिखा है? क्या तुम ये समझते हो कि किताबे मुकद्दस बेफायदा कहती है जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है। कहाँ बसाया है जी? हमारे अंदर। पाकरू कहाँ रहता है? हमारे अंदर। हमारे अंदर क्यों रहता है? क्योंकि हमारे अंदर का काम उसके आने से कंप्लीट होता है। आमीन। आमीन। जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? क्या मतलब है इसका? सुनो गौर से बेटियों बहनों, बाइबल की ये सच्चाई है, जिंदगी के रूह की मौजूदगी का ये निशान नहीं है कि आप में से कड़वे फल निकले, झूठ आप में हो जुबान पर। यीशु ने क्या कहा? इब्लीस झूठ बोलता है, झूठ का बाप है।
आप काम अबलीस वाला कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, दावा ये करते हैं कि मुझ में पाकरू। हसद आप करते हैं, दावा ये कर रहे हैं मुझ में जिंदगी का रूह रहता है, मुझ में खुदा रहता है। खुदा का पाकरू ऐसा फल पैदा नहीं करता, उसके होने का, उसकी मौजूदगी का ये निशान नहीं है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यहाँ पाकरू है, यहाँ पाकरू है, और जमात एक दूसरे के बाद में एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ा हो, तो क्या ये पाकरू के होने का निशान है जमात में? हरगिज़ नहीं। तो यहाँ रसूल क्या सवाल उठाता है, जो रूह हम में बसा हुआ है, क्या वो ऐसी आरज़ू करती है जिसका अंजाम हसद हो? जवाब क्या है? नो, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रूह का फल क्या है? अच्छा है। जोरदार खुदावंद के लिए। रूह का फल क्या है? अच्छा है, उसका फल अच्छा है, उसका फल सच्चा है, क्योंकि वो सच्चाई का रूह है। आमीन। तो पाकरू के होने का सबूत क्या है? कि ऐसे शख्स के अंदर से क्या निकलती है? जिंदगी के पानी की नदी नहीं, नदियां। ऐसा शख्स जो है वो दूसरों के लिए मसले राह होता है, बरकत का बायस होता है। उसकी सोहबत में आने वाला दुखी शख्स भी सुख पाता है, खुशी महसूस करता है। याद रखिएगा। आए एक दफा जोरदार पाकरू के लिए ग्लोरी, जोरदार, कितना जोर लगा सकते हैं रूह के लिए। हालेलुया, ग्लोरी, होली स्पिरिट के लिए जोरदार, जिसने रूह को पाकरू आपके अंदर है। हालेलुया, कहिए पाकरू मेरे अंदर है। और आप ये कह सकते हैं, जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, जोरदार ग्लोरी। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाओ।